static friction and kinetic friction. We have seen the formula for static friction is your Fs equal to mu s into n. It is not actually static friction. I can say it's better to say your limiting friction. Okay, because we know static friction doesn't have any constant formula. So your limiting friction has a formula of mu s into n, and your kinetic friction has a formula of mu k into n. So by using this formula, we will sum some numericals. Okay, so let us start with the numerical. So we have a wall here. There is a block here whose mass is 1 kg given. Okay, we are applying a force in this direction, and your force is 40 Newton. Okay, so now the question is, here some constant is given to you. Coefficient of static friction is given to you 0.3, whereas mu k also given to you 0.2. Okay, so they have asked the question now, find frictional force. So here the question is, in this type of problem, you need to find out the frictional force. So first of all, what is your duty? You should check whether the body is in motion or not. So first of all, we will check whether the body is in motion or not. Okay. If in this case the body will move, in which direction body will move? Can someone guess? Okay. Let me first draw the free body diagram. So this is your 1 kg, right? So earth will exert. Earth will exert. Tell me what? Weight. That is your mg. So let us take g equal to 10 meter per second square. So you will get your mg 1 multiplied by 10 Newton. Okay, so you got one answer. 10 Newton. Now same see, this is 40 Newton in this direction. Then in which direction your normal reaction will be? In above? No, because this body or this block is in contact with this wall. So normal reaction, you know, it is between the contact force and subsequent 90 degree direction, right? So your normal reaction will be like this. So your normal reaction is equal to how much? 40 Newton here. Okay. So first you take mu s and find out limiting friction. So limiting friction formula is mu s into n. So what is your mu s? Mu s is your 0.3. Now how much you got? Your normal reaction 40. So answer will come 12 Newton. It means the earth pulling this body by a force of 10 Newton and friction acting opposite to this force. See, friction will always act the force which is responsible for motion of the body. Here I would like to tell you one thing. 40 Newton is not responsible to make motion in this body. अगर यहाँ पे कभी भी तुम्हारा बॉडी मूव करेगा तो ये 40 न्यूटन की वजह से मूव नहीं कर रहा है, ये मूव करेगा ये 10 न्यूटन की वजह से, बॉडी के वेट की वजह से. तुम ये डायग्राम में क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि ये बॉडी जब भी मोशन करेगा ये नीचे गिरेगा. तो इसे नीचे कौन गिरा रहा है? कौन सा फोर्स नीचे गिरा रहा है? इसे वेट, एंड दैट इज योर 10 न्यूटन. सो नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब ये बॉडी को ये नीचे खींच रहा है. तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स का काम वो कौन करेगा? वेट करेगा. 10 न्यूटन तुम्हारा करेगा. और दूसरी बात ये है कि तुम्हारा बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, उसी के ऑपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन. मतलब अगर ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. तो यहाँ से ध्यान से देखो, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का आंसर आ चुका है 12 न्यूटन और नीचे तुम्हारा लग रहा है 10 न्यूटन. तो कंडीशन से क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वो बड़ा हो गया है किससे? अप्लाइड फोर्स. ओके, हम इसको ही बोलेंगे अप्लाइड फोर्स वेट को. तो अगर कभी भी तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, बॉडी तो अभी मूव ही नहीं कर रहा है. तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूंगा कि जो बॉडी है ना तुम्हारा, या फिर ब्लॉक बोल लो, कुछ भी बोल लो उसे, वो अभी मोशन नहीं कर रहा है, मतलब वो अभी रेस्ट पे है. और तुम्हें एक चीज बताया गया था कि ये जो स्टार्टिंग वाला फ्रिक्शन है ना, तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रिक्शन लग रहा है. तो जो स्टार्टिंग वाला फ्रिक्शन है ना, ये तो एक वेरिएबल फोर्स
और एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब है ये कभी भी तुम्हारा अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, ये हमेशा तुम्हारा अप्लाइड फोर्स जितना होगा उसके साथ जाके ये मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर तुमने आंसर 12 न्यूटन लिख लिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, भले ही तुम्हारा कैलकुलेशन में 12 न्यूटन आ रहा हो, लेकिन तुम्हें कितना लिखना पड़ेगा, जितना तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, 40 न्यूटन नहीं है, 40 न्यूटन अप्लाइड फोर्स नहीं है। मतलब अप्लाइड फोर्स का मतलब तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि जो फोर्स बॉडी को मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेट है, तो वेट को हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। तो वेट यहाँ पे कितना है, 10 न्यूटन है, तो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो जाएगा 10 न्यूटन। तो फाइनल आंसर तुम लिखोगे यहाँ पे, ये लॉजिक में लिखना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक डालना पड़ेगा अपने दिमाग से और ये आंसर लिखना पड़ेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैं फाइनली आंसर लिख दूंगा 10। चलो इसको नोट करो, और ये बहुत ही बढ़िया अच्छा सवाल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। ओके, तो कभी भी तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, तुम्हारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ओके, चलो इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। फिर एक दूसरा सवाल देखेंगे हम। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो डिस्कशन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, whenever there is contact between two surfaces, then there are two contact forces। वहां पे तुम्हारा दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, एक हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ओके, और दूसरा बन जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन। ये सबको पता है। So whenever two bodies are in contact or their surface are in contact, so there are two contact force. One is your normal reaction and second one is your frictional force. So let us draw in this diagram. Okay. तो उसको थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक surface है. Okay. So there is a block here. Let us take the mass m. So it will have normal reaction like this. You will have normal reaction like this. So let us take or let us consider that the body is at rest. Okay. The body is at rest. और suppose body move कर रहा है यार, मतलब मान लो कि अभी just move करने वाला है यार, when body is just about to move, ये बार थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, is just about to move, मतलब जब भी बॉडी अपना मोशन शुरू करना वाला है, अगर कभी भी बॉडी अपना मोशन जस्ट शुरू करेगा तो वहां पे होगा क्या एक्चुअली, मान लो कि बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा,
जस्ट अबाउट टू मूव वाला केस है, जस्ट स्टार्टिंग वाला केस है। तो जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करेगा मोशन करने के लिए, मान लो एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इस तरफ भी भागेगा, मान लो कि इस तरफ भी भागेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ बना देना चाहिए, तो मुझे तो कोई भी एक ही डायरेक्शन में बनाना है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो ये जो फ्रिक्शन है ना ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसी टाइम टाइम क्या है, बॉडी जब जस्ट बिगिन कर रहा है अपना मोशन, तो उसी टाइम में नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा और फ्रिक्शन होगा इस तरफ। अच्छा क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है? डेफिनेटली फ्रिक्शनल भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, राइट? मतलब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा आर। तो आर यहाँ पे क्या है, एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है। मैं बोल सकता हूँ आर इज ए रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। किस किस का रिजल्टेंट है ये? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है आर। इसी टाइम मतलब बॉडी when the body is just about to move, during that time the resultant contact force make an angle with normal reaction is called angle of friction. It's very very important. I would like to repeat once again. See, whenever the body is just about to move, during that time the resultant contact force makes an angle with normal reaction. That angle is called your angle of friction. ओके, तो ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है इनके बीच के एंगल को मैं मान के चलता हूं थीटा। तो ये जो थीटा है ना यही टाइम है ना, बॉडी जब जस्ट मूव कर रहा होगा उसी टाइम ये थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो इतना ड्रॉ करो और ये नोट करो, फिर लिखते हैं इसके बारे में आगे। ओके, तो चलो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बारे में लिखते हैं थोड़ा। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये किस किस का रिजल्टेंट है? यहां पे लिख सकते हो आर इज द रिजल्टेंट फॉर, या फिर लिख सकते हो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स ऑफ बोथ कौन कौन, एक है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है तुम्हारा फ्रिक्शन ऑफ बोथ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल। तो अब दूसरी लाइन हम लिखेंगे कि when the body is just about to move, just about to move, when the body is just about to move, during that span during that time the resultant contact force makes an angle
थीटा with the normal reaction, with the normal reaction. This theta is called angle of friction. यहाँ पे लिखो. Okay. So this theta is called the angle of friction. Theta is called angle of. चलो इतना नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे थीटा का वैल्यू. तो ड्राइंग बना करेंगे वैसा वाला. तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक था कुछ याद है, और तुम्हारा फ्रिक्शन मैंने कुछ ऐसा बनाया था. ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन, और तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ऐसा था. ओके, थोड़ा पैरेललोग्राम बना देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए. ओके, तो ये वाला था तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स. तीनों वेक्टर है. ओके, तीनों है तुम्हारा. तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे. अच्छा, अगर ये वाला तुम्हारा F मान रहे हो तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और इन दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो इसको भी मैं F मान सकता हूँ. अगर ये तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये भी तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. चलिए ट्रायंगल को थोड़ा घुमा देता हूँ और यहाँ पे से बनाता हूँ. ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा F, और ये वाला जो हो गया तुम्हारा रिजल्ट. अब तो ये तो बिल्कुल अभी वो ट्रायंगल लॉ की जैसा दिख रहा है. अगर तुम्हें वेक्टर याद होगा तो ये पूरा बिल्कुल वो ट्रायंगल लॉ की तरह दिख रहा है, और ये वाला एंगल है तुम्हारा थीटा. ओके, बराबर है ना. देखो, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट आपस में जो एंगल बन रहा है उसका हम बोल रहे हैं थीटा, और थीटा ही है तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. थीटा जो है वो है तुम्हारा एंगल. चलो, और इसका वैल्यू भी हम निकालेंगे अभी. हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू. चलो, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना. सो आई कैन राइट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, यहाँ तो पूरा दिख ही रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री है. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का मस्त रूल लगा सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा tan थीटा. ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने tan थीटा लगा लिया तो तुम्हें पता है tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. ओके, जो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है उससे तुम बेस को डिवाइड कर लो, वो बन जाएगा तुम्हारा tan थीटा. ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो बेस है तुम्हारा वो है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है. तो क्या तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इनटू एन, और नीचे तो वैसे ही एन है तुम्हारा. तो एन और एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. फाइनली यू विल गेट योर tan थीटा इक्वल टू म्यू एंड थीटा इक्वल टू, यू कैन राइट tan इनवर्स म्यू. This is what the formula of angle of friction. मतलब अगर कभी भी तुम्हें coefficient of friction दिया गया है, what is mu here? Can somebody tell me what is mu here? The mu is here coefficient of friction, right? तो तुम बोलोगे ऐसा तो कुछ सेपरेट क्वांटिटी हम पढ़े नहीं थे. हम जो पढ़े थे, एक तो पढ़े थे वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन एंड दूसरा पढ़े थे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो ऐसा नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो लोग डायरेक्ट एक ही म्यू दे देते हैं, तो एक म्यू को तुम्हें ऐसा ही पढ़ना है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन करके. अगर वो सेपरेट देते हैं क्वेश्चन में, सवाल में अगर वो ऐसे देते हैं कि एक है तुम्हारा म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन, एंड दूसरा है तुम्हारा म्यू के जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बात ठीक है. नहीं, अगर एक ही लेते हैं तो तुम एक ही यूज करो ना, उसको बोल लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इसका मतलब है थीटा है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर कभी भी तुम्हें सवाल में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, अगर तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मालूम है, उसका tan इनवर्स ले लो, तुम्हें मिल जाएगा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. मतलब तुम्हें मिल जाएगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कितना एंगल है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव करने वाला है. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन.
और यहाँ पे हम फाइनली थीटा का वैल्यू भी ला चुके हैं tan इनवर्स म्यू करके। ओके, चलो इतना नोट करो। चलो फिर एक सवाल करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m। ये ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है यहाँ से। g मान के चलो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g तुम्हें दिया गया है। तो सवाल है तुम्हारा फाइंड द टाइम, और ये सरफेस बहुत रफ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, वो है म्यू। तो क्वेश्चन में तुम्हें म्यू वो लोग दे चुके हैं, सवाल में म्यू तुम्हें गिवन है और उसका वेलोसिटी कुछ दे दिया है v नॉट, जो कि डायरेक्शन यहां से दिख रहा है कैसे मूव कर रहा है, और g तुम्हें दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी स्टॉप्स, या फिर ब्लॉक बोलो ना, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाएगा ना। तो कौन सा टाइम पे रुकेगा ये तुम्हें निकालना है। ओके, चलो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, पहले तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। तो नीचे तुम्हारा लगेगा mg, ओके, नीचे हम बना लेंगे mg, ओके, और ऊपर तुम्हारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो बॉडी इस तरह मूव कर रहा है मतलब फ्रिक्शन लगेगा इस तरह, और फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एक ही म्यू दिया है। देखो यहाँ पे एक ही म्यू दिया है, ना तो तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है ना तो तुम्हें और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है। मतलब म्यू का जो है ना वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक में नहीं दिया गया है कि काइनेटिक में नहीं दिया गया है, तो उसको ऐसे ही मान लेते हैं। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो म्यू इनटू एल, तो एल यहां से mg के बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डाल लो म्यू इनटू mg, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया कितना, म्यू इनटू mg। अच्छा, एक कंडीशन क्या मुझे बता सकते हो क्या, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रहा है तो तुम्हारा जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा, ऐसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स होगा तो वो इस तरह होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा टाइम पे बॉडी रुक जाएगा, बॉडी कब रुकेगा, ये हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये रुक जाएगा जाके। तो समझ में आ रहा है, अगर बॉडी रुकना चाहेगा तो उसका एक्सेलरेशन घटना पड़ेगा ना, जितना डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन तभी जाके बॉडी तुम्हारा रुक जाएगा। यहाँ थोड़ा देख लेता हूं आ रहा है क्या बराबर। ओके ओके ओके, चलो तो फिर हम करेंगे क्या, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेंगे, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन करने के लिए वो तो ऑटोमेटिक आएगा ना। अच्छा, ए का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे जो रुकने के लिए ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये तुम्हारा भी अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा म्यू mg अपॉन m।
यहाँ से m से m कैंसिल, तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, म्यू जी, और वो ऑपोजिट बॉडी इधर मूव कर रहा है तो ये वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आगे लग जाएगा तुम्हारा माइनस। मतलब अगर तुम्हारा रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कितना, रिटार्डेशन। ओके, सो रिटार्डेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो कब यूज होता है, तुम्हारा एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे अगर माइनस म्यू जी रिटार्डेशन यहाँ पे कुछ कर दें तो बॉडी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि तुम्हारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें कितना, v नॉट। अच्छा, फाइनली बॉडी जाके रुक जाएगा तो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ए तुम्हारा आ गया है कितना, माइनस म्यू जी। ओके, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, मतलब v भी है तुम्हारे पास, u भी है, a भी है, तो तुम्हें क्या पूछ रहा है, वो टाइम ही पूछ रहा है ना, तो लगा दो टाइम। फॉर्मूला क्या है, तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, v इक्वल टू u प्लस at। तो v का वैल्यू है 0 क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है और फाइनली जाकर बॉडी को रुकना ही है। u का मतलब है v नॉट जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, a तुमने अभी लाए माइनस म्यू इनटू जी, और यहाँ से आराम से तुम टी निकाल सकते हो। तो तुम्हारा म्यू जी टी हो जाएगा v नॉट के बराबर, और जो v नॉट हो जाएगा तुम्हारा म्यू जी अपॉन टी के बराबर, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी तुम्हें टाइम पूछा है ना, अच्छा वेलोसिटी सर टाइम पूछा है, तो टाइम भी निकाल लो यहाँ से, मतलब टाइम को एक पास रख लो और बाकी को उधर ले जाओ, तो टाइम आ जाएगा तुम्हारा v नॉट बाय म्यू जी। अगर सर तुम्हारा एसआई में है तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, मतलब टाइम का जो यूनिट है ना वो इतना सेकंड हो जाएगा। अगर सर एसआई में है तो यहाँ से टाइम आ जाएगा सेकंड। ओके, और यहाँ से और भी एक बढ़िया चीज हो सकता है, अगर वो तुम्हें पूछ लिया यहाँ पे कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, चलो कौन बताएगा मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या यार, एस निकालो पूछ रहा है तो तुम फॉर्मूला लगा लेना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, या फिर लगा लेना s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले से आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, या फिर मान के चलो रिटार्डेशन है। टाइम तो तुमने निकाल ही लिया। तो अगर तुम्हें चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ से बढ़िया से तुम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों फॉर्मूले से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलो ये तुम्हारे लिए काम है, तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना अपनी तरफ से। ओके, फिर ये नोट कर लो, दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। हो गया, चलो फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक सवाल देखेंगे, व्हिच इज इजियर पुश और पुल ना, ये एक सवाल।
फेमस सा कॉन्सेप्ट है और बहुत फेमस सवाल है, विच इज इजियर, पुश और कोई भी चीज को पुश करना आसान होता है या फिर पुल करना आसान होता है। एक्चुअली ये चीज तो एक तो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो भी पुल कर रहा है या फिर पुश कर रहा है उसका हाइट कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो वो तो हाइपोथेटिकल बात है, वो छोड़ दो। हम फिजिक्स के तौर पर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फ्रिक्शनल फॉर्मूला पे देखेंगे पुश और पुल में से इजी कौन सा है। वेल इसका आंसर जो है वो है पुल का। तो पहले ही हम लिख लेते हैं पुल इज इजियर देन पुश। क्यों, वो हम प्रूफ करेंगे, इजियर देन पुश। ये हम डायग्रामेटिकली प्रूफ करेंगे। ओके, तो दो डायग्राम बना लेंगे, एक पुल का डायग्राम बनाएंगे, एक पुश का बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा एक मास है। अच्छा, पुल मतलब उस पर कुछ फोर्स ऐसा लगना चाहिए, कोई भी चीज को अगर तुम पुल कर रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा ऐसा फोर्स डालना चाहिए, राइट। तो सेम मास यहां पर रखो, मास चेंज नहीं होगा, सेम मास को अगर तुम्हें पुश करना है तो फोर्स तुम्हें ऐसा डालना पड़ेगा, ये मान लो थीटा। ओके, सो ये जो डायग्राम है ये पुल का है और ये जो डायग्राम है ये है पुश का। और दोनों में से इजी कौन है, पुल करना थोड़ा इजी रहता है। मतलब कोई भी मास को अगर तुम्हें अच्छे से मूव करना है तो पुल इज बेटर देन पुश, और एल्स यू कैन से पुल इज इजियर देन पुश। तभी भी कार्ट वगैरह में ना तुम देखे होंगे जो तुम्हारा बैलगाड़ी वगैरह रहता है तो कार्ट में हमेशा क्या होता है, बैल वगैरह क्या करते हैं, बैल या फिर भैंस वो सब पुल करते हैं ना, राइट। सो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल दैट योर पुल इज मच मोर इजियर देन पुश। इसको हम फ्रिक्शन के तौर पर प्रूफ करेंगे, डायग्रामेटिकली प्रूफ करेंगे, देखेंगे ये कैसा होता है। एक्चुअली चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में हम बनाएंगे। तो इसका नीचे ऑर्थो से अट्रैक्ट करेगा mg से और ऊपर उसका एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा n। ओके, तो फोर्स इधर है, मतलब इसका दो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा तुम्हारा f cos थीटा और ऊपर एक कंपोनेंट आ जाएगा तुम्हारा f sin थीटा। चलो बॉडी कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्या। चलो ये फोर्स को मैं पैरेलली यहाँ पे खींच लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ F। अगर ये वाला थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका हो जाएगा F cos थीटा। ओके, और नीचे एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका F sin थीटा। बाकी चीज तो सेम रहेगा, नीचे उसे अर्थ अट्रैक्ट करेगा mg फोर्स से और इसके ऊपर सरफेस एक फोर्स देगा, वो है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, बॉडी अभी भी इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा और तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर रहेगा। ओके, दोनों केस में हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वहां पे तुम्हें थोड़ा दिक्कत महसूस होगा, मतलब वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा बॉडी को मूव कराने। जिसका फ्रिक्शन कम आएगा वहां पे पता चल जाएगा वो थोड़ा इजी होगा। तो दोनों का फ्रिक्शन निकालते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इनटू n, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ना, म्यू इनटू n। अच्छा, तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है दोनों के लिए। चलो इसके लिए मैं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालता हूँ, इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन किसको बराबर करना है, बॉडी तो या तो ऊपर नहीं जा रहा है या फिर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब बॉडी वर्टिकल में बैलेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे ऊपर दो फोर्स है ना, सो n प्लस f sin थीटा इक्वल टू नीचे है mg, therefore n इक्वल टू कितना बन जाएगा तुम्हारा mg माइनस f sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, म्यू इनटू mg माइनस f sin थीटा हो गया तुम्हारा। पुल का तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ m ही ऊपर है और नीचे दो फोर्स है, एक है तुम्हारा mg और दूसरा है तुम्हारा f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा। कुछ पल्ले पड़ रहा है। देखो उस केस में तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, वेट भी मिल रहा है और f sin थीटा। लेकिन यहाँ से वेट से ये माइनस हो रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है।
तो तुम्हें पता होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जितना बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन उतना बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा तुम्हें बॉडी को मूव करने में उतनी तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा इतना mg प्लस f sin थीटा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला से क्लियरली दिख रहा है दोनों में से इसका फ्रिक्शन बड़ा होगा और इसका फ्रिक्शन छोटा होगा। मतलब यहाँ मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूँ जो फ्रिक्शनल फोर्स पुल का है वो लेस देन है किससे, उससे। इसका मतलब दोनों में से इजियर कौन सा होगा, पुल होगा हमारा इजियर। बहुत ही फेमस सवाल है, उसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। Stop.